Hello everyone, I am Anisha. Welcome all of you to my channel, that is Virtual Classes. So today in this class we are going to solve your textual question and answers of your chapter number 4, that is Exploring Magnets. Okay, this is for class 6 science. तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर है आपकी एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स वाली चैप्टर की, ठीक है, उसको हम सारा सोल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी करेंगे, ठीक है, वो दूसरी क्लास में आएगा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से। और आज की जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है, मिक्स में होगी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग ऐसे नहीं करूँगी, तो आपको समझ अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आंसर है तो हम ऐसे अलग से मुझे हिंदी और अलग से इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आई विल बी टीचिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, इन दिस वीडियो, इन दिस स्पेशली इन दिस क्लास। And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel. So the first question that you have is fill in the blanks, isn't it? Unlike poles of two magnets, see, listen carefully, okay, this is unlike poles, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये unlike poles है, ठीक है, unlike poles of two magnets dash each other whereas like poles dash each other। तो क्या होता है, unlike poles क्या करती है और like poles क्या करती है, आपको पता है ना, attract करती है unlike poles, और like poles क्या करती है, repel करती है, isn't it? So unlike poles they used to attract one another and like pole they used to repel one another, that means they used to go away, they used to move away, isn't it? Here they used to come closer and here they used to move away. Next, the material that are attracted towards a magnet are called, जो मटेरियल जो है मैग्नेट्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, ये क्लास में किया था, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। सो दोस मटेरियल्स एंड आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑलराइट। एंड द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग दी, तो कौन से साइड में रेस्ट करता है जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास के, हमने ये भी इसको भी हमने अच्छे से किया था ना, तो बताइए कौन से डायरेक्शन में ये रेस्ट करता है, हमेशा कहाँ पे होगा ये, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सो द इट विल ऑलवेज रेस्ट, ओके, नॉट ओनली द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, all the magnets, okay, all the magnets, their direction, they will always rest on north south direction, okay. Next we have true or false. A magnet can be broken into pieces to obtain a single pole. Is it true? No, false, okay. A magnet, even if a magnet is broken, okay, it will always have two poles, that is north pole and south pole. So this statement is false. Next question, similar poles of a magnet repels each other. So this is true, isn't it? Similar poles means like poles, so it will be true. Next, iron filings mostly stick in the middle of a bar when it is brought near them. So we have done an experiment also, isn't it? So the iron filling does not stick in the middle, it used to stick in the sides and the poles, isn't it? So this statement is false, okay. Next, a freely suspended bar magnet always aligns with the north-south direction. This statement is true, okay, and this statement is important also, okay, and this is true, okay, because a freely suspended bar magnet that we have done in our activity also, isn't it? It always comes into rest in which direction? North-south direction, okay. You should be always remembering that magnet will always rest in north-south direction, okay. So now let us come to another question, that is your column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other, okay, and in column so it indicates the resulting interaction between them for different situation. So fill in the blank. So here what we are going to do, we are going to see if the magnetic pole is on north north, what will be the answer? This is like poles, isn't it? So it will repel, yes or no, and this one it is north, and if the answer is attraction then here it will be south, isn't it? And here south north, again attraction, isn't it? Again here if it is repulsion then it will come south here. So this is your answer here, okay. Here north north, first is repulsion, north south attraction, south north attraction, and south south repulsion, okay. So you can answer, write it down this in your notebook, okay. Next we have Arthur performed an experiment in which he took a bar magnet. Please listen carefully, okay, and try to understand the question also, because if you have listened to the chapter very carefully you will be able to solve this question very easily, okay. Arthur performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clip, okay, like this, all right. According to you, which of the options given in the table is likely to be his observation? So here
which of these, see there one table is given here, okay, number of pins attracted by magnet, its various position. So he have performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel, isn't it? So according to our observation, which position will be correct? Okay, the first one, that is position A 10, position B 2, and position C here 10. Here this is the position A, position B, and position C, and we always know that in B, that is in the middle, it is very weak, isn't it? The magnetic force is very weak, so it will attract more in position A and position B, isn't it? So we have to choose that answer where in the middle it is least and it is greater in the position A and position C, that is the North Pole and the South Pole. So what do you think, which of these options will be correct? See, position A, we are number 1, we have 10, 2 and 10, isn't it? 2, we have 10, 10, 2. So this is not possible. In middle, it is not possible to attract more pins, isn't it? And 3 again, 10 in the middle, this is also again not possible. And 10, 10, 10, this is also again not possible. So according to me, your correct option is this one. Okay, correct answer is number 1. I hope this is clear. So option number 1 is correct. Okay, more clips are attracted at the ends of the poles of the magnet. So here in the north direction and in the, sorry, on the North Pole and in the South Pole. And we have already done this, isn't it? It was, we have made a garland also, and we have take some iron fillings for this experiment, isn't it? And where we have spread so many small pieces of iron in the sheet of paper, and after that we brought a bar magnet over it, and what we observed, the iron fillings were attracted more towards the ends of the poles, isn't it? That is on the North and the South Pole. I hope this question is clear. Next, Reshma bought 3 identical metal bars. Okay, listen carefully. Okay, Reshma bought 3 identical metal bars from the market. Okay, this is metal bars. Out of these bars, 2 were magnets and 1 was just a piece of iron. So out of these 3 metal bars, 2 were what? Magnets. Okay, and 1 was just piece of iron. तो ये देखो, रेशमा बाजार से क्या लेके आया? मेटल बार्स खरीद के आई. 3 मेटल बार्स इसने खरीदा. तो इनमें से क्या हुआ? 2 जो है वो मैग्नेट है और 1 जो है आयरन पीस है. ठीक है, तब आपका क्वेश्चन क्या है अब? How will she identify which 2 amongst the 3 could be magnet without using any other material? तो अब इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से 3 लेके आई है तो 2 कौन से मैग्नेट है. अब हमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी तो पता है कि नहीं? अगर वो रिपेल करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेट होगा. आयरन तो हर टाइम क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से. ठीक है, रेशमा कैन ब्रिंग 1 bar close to the other 2 one at a time. If repulsion is observed between the 2 bar, both are magnets. जैसे अगर रिपल्सन देखो, सिर्फ मैग्नेट के ही केस में हमने क्या देखा था? रिपल्सन होता है. आयरन बार के केस में वो हमेशा वो अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो सेम पोल्स हो या अनलाइक पोल्स हो. ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, है कि नहीं? तो दिस इज बिकॉज ओनली मैग्नेट कैन रिपेल, आयरन विल ओनली बी अट्रैक्टेड बट नो रिपेल्स. तो अगर आयरन बार में देखो, वहाँ पे कोई रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी ही नहीं. मैग्नेट्स दूर भागेगी नहीं अगर आप सेम पोल लेके जाओगे. लेकिन यहाँ पे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इजीली मैग्नेट्स को आपने आइडेंटिफाई कर सकते हो. वहाँ पे दोनों को पास ले जाके आप देखो कौन सा रिपल्शन होता है और कौन सा में नहीं होता है. तो इजीली आप क्या कर सकते हो? आयरन बार को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और मेटल और जो मैग्नेट्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो. आई होप आपको समझ आ गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इजंट इट? सी, इन द केस ऑफ मैग्नेट देयर विल बी रिपल्सन, सो वी कैन easily identify whether it is magnet or iron bar, and we have done this in our chapter also through one experiment, isn't it? In one activity. So next, you are given a magnet which does not have the poles marked. ओके, तो आपको एक मैग्नेट दिया गया है जहाँ पे कोई पोल्स वहाँ पे मार्क्ड क्या नहीं है, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल. ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ इट्स पोल्ड मार्क. तो आप इस पोल को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो दूसरे मैग्नेट को यूज़ करके जिसमें पोल मार्क है. तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिपल्सन वाले केस में आपको पता लगेगा, अच्छा ये नॉर्थ है. अगर अट्रैक्शन हुआ तो आप एक जगह नॉर्थ होगा और जिसमें मार्क होगा वो नॉर्थ होगा, दूसरा जो क्या होगा? साउथ होगा. तो इस तरीके से आपको पता लगेगा ना. तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखना, ब्रिंग द नॉन नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट क्लोज टू वन ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट. एक मैग्नेट जिसमें मार्क्ड है, नॉर्थ पोल जिसमें मार्क्ड है, ठीक है, उसको
क्लोज लेके आना किसमें, जो दूसरा मैग्नेट जिसमें कुछ मार्क्ड है ही नहीं, ठीक है, जो दूसरा मैग्नेट जिसमें पोल्स मार्क्ड नहीं है, तो क्या होगा, इफ़ रिपेल द एन इज़ ऑल्सो नॉर्थ पोल। अगर रिपेल हुआ तो अगर जैसे हम नॉर्थ पोल लेके जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल एक दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा, तो इजीली आपको क्या पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है वो नॉर्थ पोल है उस साइड की। अगर अट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, क्या पता लगेगा, वो साउथ पोल है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो रिपीट फॉर द अदर एंड टू आइडेंटिफाई बोथ पोल्स। तो इस तरीके से आप रिपीट करके आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इजंट इट? सो इफ यू आर गिवन टू मैग्नेट इन विच वन इज मार्क्ड एंड another is not marked, you can easily identify the pole of the other magnet which is not marked by bringing the other magnet which is marked closer. If repulsion occurs, then it is north pole. If attraction occurs, then it is south pole. Okay. Next question. A bar magnet has no marking to indicate its pole. Okay, so again listen carefully. How would you find out near which end its pole is located without using another magnet? So same question but here different situation. तो देखो जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार मैग्नेट दिया गया है जहाँ पे पोल्स इंडिकेट नहीं किया गया है, मार्क नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं कि कौन सा साइड नॉर्थ पोल है और कौन सा साइड साउथ पोल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड्स इट नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। अब बिना दूसरे मैग्नेट को यूज़ किए गए। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, मैग्नेट को यूज़ किया था दूसरे मैग्नेट को, तो इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, है कि नहीं। तब इस केस में आप क्या करोगे, बिना दूसरे मैग्नेट यूज़ किए गए तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आपके फाइंडिंग डायरेक्शंस में हमने एक एक्टिविटी की थी ना, एक बार मैग्नेट को सस्पेंड फ्रीली करके थ्रेड से बांध के, तो वो वाला यहाँ पे अप्लाई करके हम उसको इसका आंसर लिखेंगे। ओके, तो देखो इस तरीके से जो हमने किया था ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद है ना। तो ये एक बार मैग्नेट, देखो आप ये दूसरा मैग्नेट हमने यूज़ किया नहीं है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको टाई कर दिया, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्शन हमने मार्क कर दिया इस पेपर में। अब इसको रोटेट करके आप जब रुकेगा, ठीक है, तो आप देखो नॉर्थ, हमें तो ये पता है ना कि मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में रुकता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है कि नहीं। तो जैसे ही ये रेस्ट में आएगा तो कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और साउथ। तो इजीली हम क्या पता लगाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, है कि नहीं, नॉर्थ पोल, कौन से साइड नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, बाय सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रीली एंड ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। तो एक मैग्नेट को आप सस्पेंड फ्रीली कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में वो आके वो रेस्ट करेगा। तो द एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो इजीली जो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मार्क करेगा, ठीक है, पॉइंट करेगा, तो वो क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरीके से बिना दूसरी मैग्नेट यूज़ किए हम नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अनमार्क्ड बार मैग्नेट में, ठीक है। सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई अ बार मैग्नेट विच हैज़ नो मार्किंग बाय कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी, ओके, बाय सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रीली एंड ऑब्जर्विंग in which direction it will come to rest. And as we know that our earth itself is a giant magnet, isn't it? So because of that, this magnet will always come into rest in which direction, north south direction, okay, north south direction, okay. So the end which points the north direction will be the north pole of the magnet. So easily we can identify this one also, okay. I hope this question is clear. Next, if the earth itself a magnet, can you guess the poles of earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass? तो अब एक मैग्नेटिक कंपास को देख के हम देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट है, तो हम यहाँ पे अर्थ के पोल को हम मतलब साउथ पोल, नॉर्थ पोल को हम इंडिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यस, ठीक है, इसका आंसर है यस, ओके। यस, वी कैन गेस द पोल्स ऑफ द अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिलअप कर देना, ठीक है। सो वी कैन गेस द एंड ऑफ द कंपास नीडल दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, है कि नहीं। तो ये तो हमें पता है, जो कंपास नीडल है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो वो नॉर्थ पोल है कि नहीं। तो हम सेम केस अब अर्थ के साथ हम कैसे पता चलेगा कि अर्थ का कौन सा पोल है। सो द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज नियर द अर्थ्स नॉर्थ। अब देखो जो नॉर्थ पोल है, तो देखो नॉर्थ और मतलब अट्रैक्शन होती है ना, तो अट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे, जो अगर नॉर्थ पोल है उसकी साइड में जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, ठीक है ना, ये अर्थ के नॉर्थ में, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ में कौन सा लाई करेगा, साउथ पोल करेगा। और एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाइज नियर द अर्थ साउथ। अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो
अर्थ के साउथ पोल में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ पोल में साउथ आएगा और साउथ पोल में नॉर्थ आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। While a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, the steel screw kept falling down. Suggest a way to solve the problem of the mechanic on the basis of what you have learned in this chapter. तो इस चैप्टर में हमने क्या किया था, एक टेम्प्रेरी मैग्नेट हमने बनाया था ना, कैसे नीडल को हमने कैसे मैग्नेटाइज किया था, बार बार उसको रब करके, है कि नहीं। तो उसी वही यहाँ पे उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी एक्टिविटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब एक मैकेनिक रिपेयर कर रहा था अपने गैजेट को तो स्क्रू बार बार आ रही थी, तो स्क्रू को हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइज कर देंगे दोबारा, बार बार उसको रब करके, जैसे कि हमने एक होममेड कंपास बनाया था ना, मैग्नेटिक कंपास, तो उसी तरीके से, ठीक है। जैसे हमने नीडल को थोड़े टाइम के लिए क्या किया था, टेम्परेरी मैग्नेटाइज कर दिया था, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द स्क्रू ड्राइवर कैन बी मैग्नेटाइज्ड, ओके, बाय रबिंग इट विद द मैग्नेट सेवरल टाइम्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हमें क्या करना है, रब करना है, ओके। दिस विल हेल्प इट होल्ड द स्टील स्क्रू एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग, तो ये गिरने से बचाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर को लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रिंग मैग्नेट्स वो X and Y आर अरेंज्ड एज सोन इन फिगर 4.16। तो यहाँ पे जैसे 2 मैग्नेट्स, यहाँ पे 2 रिंग मैग्नेट दिए गए ना, X और Y, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट X डज नॉट मूव डाउन फर्दर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैग्नेट X है ये वाला, ये नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, तो पॉसिबल रीज़न क्या है यहाँ पे, अब देखो, मतलब पॉसिबल रीज़न एक तो यहाँ पे होगा कि वो सेम पोल का होगा, कि इसलिए वो दूर भाग रहा है, नीचे नहीं आ रहा, वरना तो क्या होता, अट्रैक्ट कर जाता ना। तो सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट X इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट Y। तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट। तो एक सजेशन हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, कि मैग्नेट X और मैग्नेट Y जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाए, तो इसको पुश किए बिना हमें करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अवे क्यों है, देखो मैग्नेट X एंड Y हैव लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। ये वाला भी लाइक पोल होगा, ये वाला भी साउथ पोल होगा, या फिर ये वाला भी साउथ, या फिर ये वाला नॉर्थ पोल होगा, या फिर नॉर्थ पोल होगा। तो इसलिए दूर भाग रहे हैं, चिपक नहीं रहे एक दूसरे से, क्लोज नहीं आ रहे, है कि नहीं, कॉजिंग रिपल्सन। तो ये रिपल्सन के कारण ऐसा है, ठीक है। तो अब इनको क्लोज लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू मेक देम टच रिवर्स वन मैग्नेट सो दैट अनलाइक पोल्स फेस इच अदर। तो इस मैग्नेट को या फिर इस मैग्नेट को, ठीक है, या तो इसको हम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको रिवर्स कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस वाले साइड को इस वाले साइड कर देंगे, ठीक है, इस वाले पोल को। तो क्या होगा, ऑपोजिट पोल हो जाएगा। अब क्या होगा, दूसरा दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों क्या होगा, ये वाला जैसे हम इसको रिवर्स करेंगे ना, ये नीचे ऐसे आके चिपकेगा, ठीक है, एक साथ ऐसे चिपक जाएगा। तो इसका आंसर आप, आई होप आपको क्लियर है। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर, इजंट इट। सी दीज 2 रिंग मैग्नेट्स आर नॉट attracting each other because they are in the same direction, okay, same pole. This is north pole or either this is north pole and this is north pole, let's assume, okay. And if we reverse this ring, okay, if this revert one of these ring magnets into another pole, then what will happen, they will start attracting and this ring will come close down, okay. So that is your answer. I hope it is clear. अब नेक्स्ट है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप अच्छे से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, ओके। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ द शेप शोन इन फिगर 4.17। तो इस तरीके से 3 मैग्नेट्स यहाँ पे 1, 2 और 3। अब देखो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, चिपक रहे, दूर नहीं भाग रहे, तो क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पोलैरिटी, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है नॉर्थ है या साउथ है, ठीक है। एट द एंड्स ऑफ 1, 2, 3, 4 and 6 ऑफ द मैग्नेट्स, पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट 5 इज गिवन। तो 5 का मैग्नेट यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी नॉर्थ है। तो अगर ये 5 नॉर्थ होगा तो 4 क्या होगा यहाँ पे, 4 साउथ, ठीक है। ठीक है, पहले आपको आंसर यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। देखो अगर 5 नॉर्थ है तो 4 क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे अट्रैक्ट करके ये लोग वो कर रहे हैं ना, क्लोज आए हुए, चिपके हुए, वरना क्या होता है, रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे से चिपकते ही नहीं, है कि नहीं। अगर जैसे ये 5 नॉर्थ है तो 6 क्या होगा, ये 6 साउथ होगा। यहाँ पे 6 साउथ, 5 नॉर्थ और 4 साउथ। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब ये 4 साउथ है तो 3 क्या होगा, नॉर्थ होगा, इसलिए तो चिपक रहे हैं ना यहाँ पे, देखो 3 नॉर्थ होगा, ठीक है। अगर 3 नॉर्थ है तो फिर 2 क्या होगा, साउथ, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे साउथ हो गया। अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा, 1 नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ। तो इस तरीके से हम इसको हमने सोल्व कर लिया है।
ठीक है। जैसे 1 गिवन था तो ये देखो 5 नॉर्थ है तो 4 क्या होगा, साउथ, क्योंकि अट्रैक्शन है। और ये 5 नॉर्थ है तो ये 6 क्या होगा, साउथ, क्योंकि अट्रैक्शन है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, है कि नहीं। अब जैसे 4 का यहाँ पे साउथ है तो 3 यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, अब ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये साउथ होगा। और ये ये वाली बार मैग्नेट की ये साउथ है तो ये फिर क्या होगी, नॉर्थ होगी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इजंट इट, हाउ वी हैव सॉल्व दिस वन, because there is a property of attraction here. So based on that we have solved this one. Okay, in a bar magnet we have always two pole, that is north and south, isn't it? So based on that and based on the property of attraction we have solved this question. So I hope these are clear to you. So this was your last question, isn't it, for the textual. So we'll bring the extra question and answer in your next class. Okay, तो हम ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर है आपके नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। ओके, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. We'll meet again in my next class.